مقبوضہ کشمیر کی وادی پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، واقعے کی تحقیقات سے پہلے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ میری طرف سے اور میرے تمام جوانوں کی طرف سے پورے پاکستان کو عید مبارک۔ جی ناظرین، تو میں پہنچا ہوں شوال کا یہ ایریا ہے، ایگزیکٹ لوکیشن کچھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا، تو یہاں میں اس لیے پہنچا ہوں کہ میں دیکھ سکوں اور آپ لوگوں کو بتا سکوں اور آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ کس طرح پاک فوج کے جوان بھرپور عزم اور حوصلے کے ساتھ، پوری ہمت اور جذبے کے ساتھ ملک کا، اس وطن کا، اس دھرتی کا دفاع کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اس جگہ پر آنے کی جو خاص وجہ ہے کیونکہ شمالی وزیرستان کا ایریا بہت اپنے طور پہ خطرناک ایریا مانا جاتا تھا۔ اس ایریا میں جو فتنۃ الخوارج ہیں، تحریک طالبان، کالعدم تحریک طالبان کے لوگ اور حافظ گل بہادر گروپ، بہت حد تک ان کا انفلوئنس ہے اس علاقے میں۔ یہ کیونکہ یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دوسری طرف افغانستان شروع ہو جاتا ہے، جس میں پکتیا کا علاقہ ہے، اور پکتیا سے اوپر کی جانب اگر ہم جاتے ہیں تو خوست کا ایریا آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں فتنۃ الخوارج کا ایک مضبوط نیٹ ورک موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی پراکسی، کیونکہ اشرف غنی صاحب کی حکومت میں ایک لمبا چوڑا نیٹ ورک ہوتا تھا جس میں کونسولیٹ تھے ہندوستان کے، وہ بڑے حد تک متحرک تھے۔ یہ جو علاقے اس سارے بارڈر کے آس پاس لگتے ہیں افغانستان کے، وہاں بہت حد تک پراکسی اور وہ آپریٹرز اور وہ لوگ موجود ہیں جو را کے فنڈڈ لوگ ہیں، ہندوستان آرمی کے فنڈڈ لوگ ہیں، اور وہ فتنۃ الخوارج کو بھرپور انداز سے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو بارڈر پہ باڑ لگی ہے اس کو کاٹیں اور انفلٹریٹ کریں اور مختلف علاقوں میں آ کے دہشت گردی کے واقعات سر انجام دیں۔ تو یہ بڑا خطرناک بارڈر مانا جاتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو اگر ہم بات کریں تو دنیا کہتی ہے کہ یہ دنیا کا خطرناک بارڈر ہے، دنیا مانتی ہے کہ یہ مشکل بارڈر ہے، مشکل ٹرینز ہیں، رستے بڑے مشکل ہیں، پہنچنا آسان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، جنگل یہاں پہ ہے، موسم بڑا ہارش ہے۔ تو یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ 22 اپریل کو پہلگام کا ایک واقعہ ہوا جس پہ بلا وجہ بغیر ثبوتوں کے آج بھی 1.5-2 مہینے ہو چکے ہیں، آج بھی ایک ثبوت ہندوستان نہیں دے سکا پہلگام کو لے کے، لیکن الزام پاکستان پہ ہے۔ پہلگام پہ مودی صاحب نے الزام پاکستان پہ لگایا، سعودی عرب کے دورے پہ تھے، فوراً واپس آئے اور الزام لگانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو دھمکانا شروع کر دیا۔ تو پاکستان کی افواج کو، سیکورٹی اداروں کو پتہ تھا کہ ویسٹرن بارڈر پہ کہیں نہ کہیں ایک مس ایڈونچر ہندوستان کرنے کی کوشش کر، ساری پراکسی فتنۃ الخوارج ہو، جتنے لوگ گروپس ہیں وہ سارے کے سارے ہندوستان کی پراکسی ہیں، ہندوستان سپانسر کرتا ہے ان کو کہ وہ پاکستان پہ حملہ کریں۔ تو یہ پوری اطلاع تھی پاکستان کے پاس کہ ویسٹرن بارڈر سے دہشت گرد فتنۃ خوارجین آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے لوگ بہت تیار تھے۔ میں شوال کے، شمالی وزیرستان کا جو یہ ایریا ہے شوال، اس جگہ پہ اس لیے آیا ہوں کہ یہاں سے لاسٹ ویک آف اپریل، 22 اپریل کے بعد 26، 27 اور 27، 28 کہہ لیں کیونکہ لمبا آپریشن رہا، 70 سے 80 دہشت گرد انہوں نے کوشش کی باڑ کو کراس کرنے کی۔ تو میں اس ایریا میں بھی آپ کو لے کے جاؤں گا۔ پاکستانی فوج نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو جہنم واصل کیا اور اس ملک کا دفاع کیا۔ یہ دنیا میں ایک بڑا یونیک آپریشن ہے۔ 60-70 گھنٹے یہ آپریشن چلتا رہا۔ پاکستان کا کوئی کیجولٹی نہیں، کوئی ایک جوان میرا تیار تھے شہادت کے لیے، کسی ایک جوان کی جان نہیں گئی اس میں، کوئی ایک کیجویلٹی نہیں، ایک کٹ تک نہیں آیا کسی فوجی جوان کو۔ بھرپور سیکیور آپریشن تھا اور فورسز کو پرزرو کیا گیا۔ شاندار آپریشن تھا کہ 71 بندوں کو مارا گیا جو خوارج تھے، اور دنیا کو بھر کو بتایا گیا کہ کس طرح دشمن پاکستان میں دہشت گردی چاہتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جدید ہتھیار تھے۔ تو ہم ذرا یہاں جو فوجی جوان اس دن تعینات تھے جنہوں نے یہ آپریشن کیا، ذرا ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ عید ہو، چھٹیاں ہوں، کوئی بھی تہوار ہو، وہ ہر دم اس ملک کی حفاظت کے لیے بارڈر پر اس مشکل ایریا پر مامور ہوتے ہیں اور دشمن کو موقع نہیں دیتے کہ وہ بارڈر کراس کرے، فینس توڑے۔ خاص طور پہ افغانستان کی جانب سے خوارجین بھرپور کوشش کرتے ہیں اور میرے فوجی جوان اس حوالے سے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ تو آئیے چل کے بات کرتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بڑی تعداد میں
80 लोग 70-80 लोग दहशत गर्द जो थे वो फितनतुल खवारिज के लोग वो थे, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी और आपके जवानों की? फीलिंग्स यही थी कि बस हमने अपना काम करना था। तो अपने काम में अभी हम तो सर पे अभी बांध के आते हैं कफन, ठीक है, हम तो रेडी हैं इस चीज़ के लिए। अगर वो रेडी हैं तो हम उनसे डबल रेडी हैं। तो इस बार यही हमने सोचा हुआ था कि इनको हमने मार के भगाते थे पहले दूर से, तो वो चले जाते थे। हमने कहा भी इनको दूर से नहीं जाने देना, इनको यहाँ पे हम ट्रैप करेंगे और यहाँ पे इनको हम ल्योर करके तो इंगेज करेंगे। तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। प्लानिंग की हमने, उसके अंदर काफ़ी जवान थे, उनमें हिम्मत थी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने उनका वेट किया और उसके बाद उनको जब ल्योर इन कर लिया उसके बाद हमने इंगेज किया उनको, फिर जितने वेपन्स हमारे पास मौजूद थे उनसे। ये इस तरह के ऑपरेशन की मिसाल बहुत कम मिलती है, शायद मेरा ख्याल में ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि जहाँ 71 दहशतगर्द मार दिए गए हों, हमारी तरफ से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन। ऐसा नहीं तो कि हमेशा हम वॉर लॉस को सामने रखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई डैमेज हो जाएगा, खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी भी हो सकती है, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है प्रेशर भी उतना बढ़ता जाता है, लेकिन आपने उस टाइम को बतौर बेनिफिट इस्तेमाल किया, आप ये कह रहे हैं? जी ऐसे ही हमने तैयारी की और हर जगह पे ऐसे ही है, और सिर्फ हमारी तरफ नहीं है, हर जगह पे लोग इस तरह से करते हैं, प्लान करते हैं पूरा। अगर कोई बच के निकल जाए तो अलग बात है, और लेकिन तमाम पूरी आर्मी की यही प्लानिंग है, यही प्रिपरेशन है, हमारी कमांड के भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं, यही ऑर्डर्स हैं, और उनको हम इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा बेहतर ऑपरेशन होंगे आगे, आप देखेंगे टाइम जब आएगा तो। जब से पहलगाम हुआ है और फिर हिंदुस्तान के साथ हमारा जो कशीदगी बढ़ी है, जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर मिसाइल मारने की कोशिश की, हमने वापसी जवाब दिया, तो जो हमारा अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, ख़ास तौर पे ये शवाल का सारा एरिया और शुमाली वज़ीरिस्तान का, यहाँ से क्या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है दहशतगर्दों की? जी इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इनकी बढ़ गई है, और पिछले कुछ अरसे में, और जो इनको सपोर्ट कर रहा है आपको एग्जैक्टली पता है। तो लेकिन उसी हिसाब से हम तैयार हैं, हमने भी अपनी एडजस्टमेंट उस तरह से कर ली है इंशाल्लाह ताला, और टाइम के साथ साथ जो भी आएगा हम उसको इंशाल्लाह इससे ज़रा तगड़ा रिस्पांस देंगे इंशाल्लाह। जो हमने 26 की रात को 25 और 26 की रात को दिया था। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्या कोई भागने में कामयाब हुआ कि तमाम लोगों को कॉर्डन ऑफ करके आप लोगों ने जानना वसाल किया? अल्हम्दुलिल्लाह सारे सब के सब जो निकल गए, वो आगे दूसरी हमारी यूनिट बैठी थी, उसने उनको इंगेज कर दिया रास्ते में, तो वो ब्लॉक लगा के बैठी थी। बाकायदा स्ट्रेटजी अपनाई गई और हमारे फ़ौजी जवानों ने भरपूर अंदाज से उनको इंगेज किया और उनको मैं तो कहूँगा कुत्ते की मौत मारा है। वो जिस मौत के हकदार थे वही मौत उनको मिली है। सर मुझे ये बताइए कि उनके पास किस तरह का वेपन थे और क्या उन्होंने क्रॉस वापस फायर भी किया, हमले की कोशिश की? जी बिल्कुल, उनके पास जो लेटेस्ट वेपन्स थे, उनके पास अमेरिकन वेपन्स थे, M4s थी, M16s थी, RPG7s थे उनके पास, और उसके बाद PKMs थी, और नॉर्मल जो क्लैशनकोव होती है ये रशियन, वो थी उनके पास। तो ये सारे अच्छे थे। फिर IDs उनके पास थी, जो प्रिपेयर करके IDs अपने साथ लेके आए हुए थे, वो जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ ये करना था कि आपने डेटोनेटर लगाना है और कहीं पे प्लेस करना है उसको, वहाँ पे एक्सप्लोड कर देना है। और उसके बाद उनके पास थर्मल इमेजिंग साइट्स थी जो वेपन्स के ऊपर माउंटेड थी। ये दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं जो हमें कमांडिंग ऑफिसर साहब बता रहे हैं, ये दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं, और इनमें से बहुत सारे वो हथियार हैं जो अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये है, बिल्कुल अमेरिकन वेपन्स थे वो, और इस तरह से कोई ऐसा नहीं था कि मैन्युफैक्चर्ड है यहाँ पे या इस तरह, प्रॉपर अमेरिकन वेपन्स से सीरियल नंबर से ऊपर लगे हुए, और ये वही वेपन्स हैं जो कि अमेरिकन यहाँ पे छोड़ गए हैं, और ये उनको इजीली अवेलेबल हैं लोकल मार्केट्स के अंदर अफगानिस्तान की साइड पे। तो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट था उनके पास। वैसे हमारी फ़ौज, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की जो स्ट्रेटजी है एज ए फील्ड कमांडर, वो पूरी फ़ौज में इम्प्लीमेंट हो रही है। ये वाक़या हुआ है 26 अप्रैल को, और हिंदुस्तान ने हमला किया 6 और 7 मई को। फिर हमने 4 दिन उनको इंगेज रखा, और फिर 10 को 4 ही घंटों में हिंदुस्तान का सारा गरूर खाक में मिला दिया। तो जो स्ट्रेटजी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की थी, वही हमारे कमांडर्स की है कि दुश्मन को इंगेज करते हैं और इंगेज करके ट्रैप करते हैं, और ठीक निशाने पर रखते हुए उनको वही मौत मारते हैं जिसके वो हकदार हैं।
नाज़रीन, बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप बॉर्डर पे होते हैं, और वो भी अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, जहाँ हर लम्हा हर सेकंड एक ख़तरनाक सेकंड होता है, और कभी भी कहीं से दुश्मन की गोली आ सकती है और दुश्मन भी आ सकता है, क्योंकि जब से हिंदुस्तान के साथ टेंशन बढ़ी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में अनरेस्ट चाहता है, हिंदुस्तान फितनतुल खवारिज को भरपूर तरीके से सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जो सूबा है, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पख्तिया का इलाका है, इसके साथ खोस्त आगे बनता है, तो ये वो इलाके हैं जहाँ हिंदुस्तान के कौंसलेट रहे, जो जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ वहाँ सब काम हिंदुस्तान की जो प्राइवेट कंपनियां थी और उसमें जितने कॉन्ट्रैक्टर थे वो सब रॉ के एजेंट्स थे, तो एक बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग हिंदुस्तान के मौजूद है। तो हिंदुस्तान चाहता है कि फितनतुल खवारिज के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करे, और इसी बाढ़ को क्रॉस करते हुए वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो मेरे साथ जवान हमारे मौजूद हैं, ऑफिसर्स हैं, तो ऑफिसर का जज्बा बड़ा शानदार होता है, और यंग ऑफिसर घबराते भी हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हम ऐसे मौक़ों पे बिल्कुल नहीं घबराते। और जैसा कि आपने ये बताया है कि फ़ितना अल ख़वारिज, जिनके पीछे इनके फ़ितना अल ख़वारिज को इंडिया बैक करता है, और जब से ये पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद से ही हमें यहाँ से इंटेलिजेंस से ये रिपोर्टें मिल रही थी कि ये कोई अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए वेस्टर्न बॉर्डर को भी एक्सप्लॉइट करेंगे, और हम हर वक्त इसलिए तैयार थे। और जैसा आपने बताया 27-28 की रात एक बहुत बड़ी तश्कील, इतनी बड़ी तश्कील हिस्ट्री में किसी जगह पे इंगेज नहीं हुई, उसने ये फेंस क्रॉस करने की कोशिश की, और हमें हायर कमांड से जिस तरह के ऑर्डर्स मिले हुए थे उनको हमने उसी तरह एग्जीक्यूट करते हुए उनको हमने लोअर इन किया और अंदर आने दिया। हाउ यू आइडेंटिफाइड? इनको हमने एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही आइडेंटिफाई कर लिया था, और हमने इनको तकरीबन 6 बजे शाम को आइडेंटिफाई कर लिया था, और हमने 3 घंटे इनको वेट किया इनका, और वेट करने के बाद जब ये लोअर इन हुए और हमारे ऐसी जगह पे आए जहाँ पे किलिंग जोन था, तो हमने इनको इंगेज किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, एज यंग ऑफिसर ऑफ कोर्स खौफ नहीं है, जज्बे हैं, हिम्मत होती है, मुल्क और वतन की हिफाजत के लिए आप बॉर्डर पे होते हैं। अब ये जो 71-70 से 80 बंदा, मतलब एक ह्यूज क्राउड जब आ रहा था, और वो वेल इक्विप्ड भी था, और जब आपने उनको सबको मार डाला और उसके बाद जो आपने वहाँ से वेपन इकट्ठा किया, तो वो बड़ा मॉडर्न और बड़ा दुनिया का जदीद असला उनके पास था। तो क्या उन्होंने कोई रिएक्शन करने की कोशिश की, और उस वक्त जज्बात क्या थे आप जैसे जवान ऑफिसर्स के और बाकी जवानों के? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। ये इनके पास M4 M16 वेपन, जदीद किस्म के वेपन थे, और हमें भी पता था इनके पास वेपन है, और 71 बंदा बहुत ज़्यादा तादाद होती है, लेकिन वही है कि हमें हायर कमांड के हम पर यकीन था, और हमें भी अपने जवानों पे नीचे यकीन था कि वो इस टास्क को पूरा करेंगे, और उसी को हमने वेल एग्जीक्यूट किया उस जगह पे, और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप ऑपरेशन था, एक टेक्स्ट बुक का जो प्योर फॉर्म होती है उसका ऑपरेशन था, और हमने इसको उस पर करके दिखाया कि हमने 71 बंदे मारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। दुश्मन के लिए क्या पैगाम है? दुश्मन के लिए हमारा यही पैगाम है कि चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो या ईस्टर्न बॉर्डर हो, क्योंकि ये सारे एक ही हैं, और दुश्मन बेसिकली हमें पता ही है हमारा कौन है। तो जो हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे बंदे बैठे हैं उनको भी अभी इस स्टैंड ऑफ के बाद जो 6-7 को हुआ है, 10 तक चलता रहा है, उसके बाद भी एक सबक मिल गया है, और उन्होंने इस साइड पे भी ट्राई करने की कोशिश की, और उनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और उनके लिए हमारा यही पैगाम है कि आप इस साइड से करें या ईस्टर्न से करें या वेस्टर्न साइड से करें, हम हर वक्त पहलगाम के बाद ये बड़ा एक वो था, और शायद मैंने जैसे पहले भी कहा कि तारीख़ में इस तरह के इतने दहशतगर्दों का एक पूरा क्राउड ख़वारिजीन का वो इकट्ठा हो और धावा बोल दे और सारे के सारे मार दिए जाएं, ये हमारी सक्सेस है। तो हिंदुस्तान चाहता ये था कि पाकिस्तान को प्रेशर में लाए। पहलगाम के बाद ये पहला बड़ा इंसिडेंट जो होने जा रहा था, जो इस बॉर्डर पे था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और इसका मकसद था कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करना, जो कि हमने नाकाम किया उनको। बिल्कुल हमने नाकाम किया। ये एक बहुत बड़े 71 बंदा अगर किसी जगह पे जाता, इनका आगे यही था कि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन स्टेज करें और ये दिखाएं कि पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर्स भी अनस्टेबलाइज हैं, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी जगह पे सिर्फ 200 मीटर के अंदर बॉर्डर के अंदर ही हमने उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया। ये 27-28 अप्रैल का ये वाक़या है। जैसा आपने बताया कि पहलगाम के बाद इंडिया ने अपनी प्रॉक्सीज की, तो हमें भी इंटेलिजेंस अदारों की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली कि तकरीबन एक तश्कील जो कि एक ग्रुप होता है ख़वारिज का, जो उसको यहाँ पे तश्कील बोला जाता है, तो ये तकरीबन 70 से 80 ख़वारिज की एक ग्रुप है जिसने इन्फिल्ट्रेट करना था, और उसने रियर में बन्नू और मीरान शाह और पीछे हमारे मैदानी इलाकों में जाके उसने सेटल्ड एरियाज़ को डिस्टेबलाइज करना था। तो इसमें एक पूरा ग्रुप था जो पाकिस्तान पर बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पे हमला करने के लिए
यहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर रहा था। जी बिल्कुल, और जैसा हमने आपको ब्रीफिंग में पहले भी बताया कि इसके अंदर बहुत सारे इवन जो कुछ अफ़गानी स्पेशल फोर्सेस के भी कुछ थे और कुछ और भी इस तरह के ख्वारिज थे जो कि बहुत अहम कमांडर थे, जिनको स्पेशली लॉन्च किया गया था इस इलाके में ताकि हमारे जो अंदर सेटल्ड एरियाज़ हैं उनको डिस्टेबलाइज किया जाए। ये आइडेंटिफाई कैसे हुए और उसके बाद इनको किस तरह इंगेज किया गया? मतलब ये जब हमें पता लगी ये बात में ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि जब हमें एक प्रेस रिलीज़ आया कि पाकिस्तान ने इतने दहशतगर्दों को मार दिया, अच्छा यकीन नहीं हो रहा था कि यार इतने दहशतगर्द मारे गए और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आखिर एज एन कमांडर आपकी कैपेबिलिटीज़ को सल्यूट करने को दिल करता है। क्या आपने अपनी पूरी फ़ौज को सिक्योर रखा? वो प्रिजर्व फोर्स आप शायद टर्म बोलते हैं, तमाम जवान आपके सिक्योर रहे, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये किया कैसे आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आपने बताया ये हमारी सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये एक पहला और ये एक लाजवाल ऑपरेशन है जिसमें हमने 71 ख्वारिज को मारा और उनकी बॉडीज़ भी हमने रिकवर की। उनको हमने पार में नहीं मारा, उनको हमने अंदर आने दिया, फेंस को ब्रीच करने दिया और उनको हमने अपने इलाके में मारा ताकि हमारे कितने जवान शहीद हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ। कितने CMH या हॉस्पिटल गए जख्मी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं थी। देयर इज़ नो कैजुअलिटी। और मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, एक सिंगल जवान मेरा जख्मी भी नहीं हुआ, इसी तरह है जी? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं थी और हमने 71 जो खारिज हैं उनको मारा और ना सिर्फ उनको मारा बल्कि हमने उनकी बॉडीज़ भी रिकवर की। सर ये जो लगा हुआ है ये क्या है सर? ये बड़ा डिफरेंस है, मैंने कहीं नहीं देखा ये। जी ये हमारे कोर कमांडर जो हैं वो जो भी कोई अच्छा जनरल उमर बुखारी साहब। उमर बुखारी साहब जो हैं तो जो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको ये एक बतौर आप इंसिग्निया ये देते हैं। इसके ऊपर जैसा आप देख रहे हैं निडर और बावकार, तो जैसा हमें पता लिखा भी है जी बावकार निडर। जी बिल्कुल, तो ये बहादुरी भी है और फिर ये प्रोफेशनलिज्म भी है कि उसके लिए ये तमाम मेरे जितने भी ऑपरेशन में इसमें जितने जवान थे और हमारे जितने ऑफिसर्स थे उन सबको ये कोर कमांडर की तरफ से ये पहनाया। ये जो ऑपरेशन 26 और 27 अप्रैल को हुआ उसके बाद जी उसके बाद नाज़रीन मैं उन जवानों के साथ मौजूद हूँ जो कि जिनका जज्बा, जिनका वलवला, जिनका अज़्म, जिनको देख के खौफ महसूस करता है ये दुश्मन। और ये खौफ इतना खौफ है कि ये जो मेरे फ़ौजी जवान हैं इनका खौफ हिंदुस्तानी फ़ौज पे इस कदर तारी है कि कोई मेरे ख़्याल में 6 मई तक तो वो सिर्फ एक ही नाम से खौफज़दा थे, वो नाम था फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने फ़ौज को इस हद तक दुश्मन के सामने जज्बे के साथ लाए हैं कि अब पाकिस्तानी फ़ौज का हर जवान खौफ तारी कर देता है हिंदुस्तान के ऊपर भी। और जो मेरे पीछे आप वेस्टर्न बॉर्डर देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, यहाँ जितनी प्रॉक्सीज़ हैं, क्योंकि ये वो सूबा है पख्तिया और खोस्त जहाँ हिंदुस्तान के कौंसल्स भी होते थे जब अशरफ गनी साहब के ज़माने में, और हिंदुस्तान की रॉ और IB के बहुत सारे ऑपरेटर्स, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स यहाँ काम करके गए हैं। तो पूरा एक नेटवर्क मौजूद है जो प्रॉक्सीज़ को ऑपरेट करता है, फितनतुल ख़वारिज को ऑपरेट करता है और इन्फिल्ट्रेट कराता है पाकिस्तान के अंदर। और यही 26 और 27 अप्रैल की रात को हुआ कि जब 70-80 लोग फितनतुल ख़वारिज के पाकिस्तान में दाखिल होकर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके दहशतगर्दी करने चाहते थे, लेकिन इन जवानों ने ना सिर्फ उनको जहन्नम में पहुंचाया बल्कि इस मुल्क का दिफा भी भरपूर अंदाज से किया। क्या नाम है आपका? नफ्सदार जमशेद। जमशेद भाई, खौफ नहीं आया? इतने लोग इकट्ठे आ गए, अमरीकी असला था उनके पास। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, खौफ जब वर्दी पहन लिए तो खौफ सारा ख़त्म हो जाता है। ये वर्दी है ही खौफ डालने के लिए, डालने के लिए, तो खौफ वाली तो बात ही नहीं है। जब इधर खड़े हैं हम तो कोई किसी की जरूरत नहीं है कि इधर से गुजर जाए। अच्छा ये ऐसा महाज है कि यहाँ अचानक गोली आ सकती है, कोई पता नहीं दुश्मन कहाँ पे बैठा है, ना आपके ब्रिगेड कमांडर वहाँ किसी कमांडर को एंगेज कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट होता है ना कि यार कभी भी आ सकता है, हर टाइम खौफ में रहना है। नहीं होता है, लेकिन इस तरह के नहीं कि हम इंशाल्लाह मौत से डरते नहीं हैं। ये शहादत है, शहादत वाली ज़िंदगी है, जब आएगी तो मसला नहीं है। उस रात क्या हुआ था? उस रात हमें हमारे बाला कमांडर ने बताया कि ये इन्फिल्ट्रेशन होने वाली है, तो आप अपनी अपनी जगहों पे लोकेशन हो जाएं। तो हमने फिर जो जगह बताई हुई थी बाला कमांडर ने हमें, हम उस जगहों पे गए और इंशाल्लाह ताला हमने उनको मारा है और खूब मारा है। कितने घंटे ऑपरेशन रहा? तकरीबन हम 50-60 घंटे। तो हम थके नहीं आप? थकने वाली बात नहीं थी सर। यार मैं तो ये पहाड़ी चढ़ा हूँ, थक गया हूँ 15 मिनट में। थकने जब बंदा थक जाए तो फिर ऑपरेशन नहीं कर सकता। यही फ़र्क है एक फ़ौजी जवान में और आप में और मुझ में।
سر آپ کا کیا نام ہے؟ حولدار علی. علی بھائی یہ بتائیں کہ کیا اس رات کا منظر تھا اور دشمن کو کس طرح ٹارگٹ کیا آپ نے؟ جب ہمیں پتہ چلا اپنے بالا کمانڈر کو بتایا اور ہم اپنے آن لوکیشن ہو گئے تھے. الحمدللہ ہم نے پوری تیاری کی ہے ان کے پہنچنے سے پہلے. جب وہ نزدیک آئے, جب ہمیں بالا کمانڈر نے بتایا کہ ابھی ان کو ٹھکانے لگا دو, تو الحمدللہ ہم نے وہی کیا جو سب کے سامنے ہے. اسی بندوق سے مارا تھا؟ اسی سے مارنا ہے پھر بھی؟ بالکل انشاءاللہ اسی طرح. اگر ہندوستان دوبارہ اپنے اسی طرح کے بندے تیار کر کے بھیجے گا تو ہم اس سے بھی برا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ. اس سے بھی برا. یہ واضح پیغام ہے. بالکل انشاءاللہ. ڈرنا نہیں ہے, الحمدللہ ڈرا کے رکھنا ان کو. بالکل ایسے ہی ہے. ویل ڈن جی. یہ جذبے ہیں میرے پاک فوج کے جوانوں کے. جہازیب صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. یہ اچھا, یہ جو کیونکہ ہمیں بریگیڈ کمانڈر نے بتا دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس آپریشن میں تھے 26 اور 27 کی رات کو, جنہوں نے دنیا کا کامیاب ترین آپریشن, یہ وہ آپریشن ہے کہ جو شاید تمام افواج کو, دنیا بھر کی افواج کو پڑھایا, سمجھایا اور بتایا جائے گا, ایک ماڈل کے طور پہ پیش ہوگا کہ جب 70-80 دہشت گرد ہوں اور اس طرف سے نہ کوئی نقصان ہوا, ایون میرا ایک جوان زخمی تک نہیں ہوا, اور تمام دشمن کو کافر کردار تک پہنچایا اور جس خوبصورتی سے انگیج کیا گیا, اور 60-70 گھنٹے کا لمبا آپریشن تھا. تو جہازیب بھائی بڑی کامیابی کے ساتھ آپریشن کیا, تو ذرا اس دن بتائیں کہ دشمن کو دیکھ کے کیسے ٹارگٹ کیا آپ نے؟ ہم نے جب دشمن کو دیکھا تو ہمیں اور ہمارا خون جوش میں آ گیا. جب ہمارا خون میں جوش میں آیا تو ہم اپنے بالا کمانڈر کے دیے احکامات پر عمل کیا. ہم نے اپنی پارٹیاں بنائی, پارٹیوں کے ساتھ ہم اپنے بلاک اسٹیبلش کیے. اس بلاک جب اسٹیبلش ہو گئے تو ہمیں اپنی بھی سیفٹی بھی دیکھنی تھی اور دشمن کو بھی جواب دینا تھا. تو ہمارے بالا کمانڈر کے جو احکامات تھے اس پر ہم نے عمل کیا اور ان کا بھرپور جواب دیا, جس میں ان کو ہم نے شکست دی اور خود فتح ہوئے. ہندوستان کہتا ہے کہ میں اس طرح کے حملے دوبارہ کرتا رہوں گا. یہ افغانستان بارڈر سے باڑ توڑیں گے ہندوستان کے لوگ, کیونکہ بھیجتا تو ہندوستان, پیسے دیتا ہے نا ان کو, سہولت کاری ساری کرتا ہے, وہ میں پھر بھیج دوں گا. وہ بھیجیں, ہم بھی آل ٹائم ہر وقت تیار ہیں. ہمارے پاس ایسی سائٹیں اور ایسی انفارمیشنیں ہیں جس سے ہم ان کا بھرپور جواب دیں گے. تو زبیر بھائی ہر ٹائم یہاں خطرہ رہتا ہے کہ کبھی بھی دشمن آ سکتا ہے؟ بالکل, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہر ٹائم ہم تیار ہیں 24 گھنٹے, جس وقت دشمن آ جائے ہم اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تو دوسری طرف دشمن ہے, وہ ایک طرح کا ایسا اندھا دشمن ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا. وہ کبھی بھی آتا ہے, فائر کرتا ہے, پاکستان پہ حملے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم اس کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جو ہم نے 26 اور 27 اپریل کو کیا سر, اس طرح کا کامیاب آپریشن ہم کرنے کو ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ, بغیر ڈر کے, بالکل بغیر خوف کے. بالکل سر. اس کے کیا لیے پیغام ہے دشمن کے لیے؟ کہ ہم 24 گھنٹے تیار ہیں, اگر دوبارہ بھی آئے تو اسے برا حشر کریں گے ان کا. واہ, دوبارہ بھی آئے تو اس سے بھی برا حشر کریں گے. ناظرین, آپریشن جس پہ 71 دہشت گردوں کو مارا گیا اور دشمن کو میسج دیا گیا کہ ہماری افواج پورے پاکستان پر ہر وقت تیار ہے, کیونکہ ہندوستان اس بھول میں تھا کہ میں تو ٹینشن بڑھا رہا ہوں ایسٹرن بارڈر پہ, تو ویسٹرن بارڈر پہ پاکستان کے پاس شاید اتنا مارجن نہ ہو. میرے پاس فوج کی تعداد بڑی کم ہے, لیکن میری اسٹریٹجی وہ جو 6 لاکھ فوج ہے اس کو 60 لاکھ کر دیتی ہے. اور پھر جو ان کے جذبے ہیں وہ 6 لاکھ فوج کے نہیں 6 کروڑ فوج کے بن جاتے ہیں, اور پھر وہ جذبات 25 کروڑ عوام کی عکاسی کرتے ہیں. تو یہ ہندوستان کی بھول تھی جس چکر میں اس نے یہاں سے خوارجین کو انفلٹریٹ کرانے کی کوشش کی. تو میرے ساتھ دونوں کمپنی کمانڈر موجود ہیں جو اس رات آپریشن جنہوں نے کنڈکٹ کیا, پورا 60-70 گھنٹوں کا ایک لمبا آپریشن تھا, ایک لینتھی آپریشن تھا. کیا مشکلات آئیں آپ کو؟ مشکلات ڈیفینیٹلی آپریشن مشکل تھا, کیونکہ ہمیں جو ڈیٹیکشن تھی اس میں سرویلنس ڈیوائسز نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. اس کی وجہ سے ہم نے ارلی جو ہے سرویلنس کی, اس کی وجہ سے ہماری ڈیٹیکشن ہوگی. اس کے بعد بلاکس کو موو کرنا بہت چیلنجنگ تھا. ڈارک نائٹ تھی, بالکل پیش ڈارک نائٹ تھی. اگر ہم لوگ ڈیٹیکٹ ہو جاتے, ہمارے بلاکس اگر ڈیٹیکٹ ہو جاتے, تو وہ ہمارے لیے آپریشن الٹا پڑ سکتا تھا, اس میں ہماری کیجولیٹیز بھی ہو سکتی تھی. لیکن ہم نے اس کو ریسٹرین کیا. ہم نے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ دشمن کے پاس نائٹ ویژن تھے. جی, دشمن کے پاس بھی نائٹ ویژن تھے. تو ہماری جو سیکریسی تھی اس کو ہمیں قائم رکھنا ہی سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ تھا آپریشن کا. اس کے بعد جیسے کہ آپ کو ہمارے بالا کمانڈر نے بھی بتایا کہ فائر ریسٹرین کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. کہیں بھی ہم نے دشمن کو یہ اندازہ نہیں ہونے دیا, جتنے بھی خوارجین تھے,
कि वो ट्रैप हो रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो गए। एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हमने अपने आप को बड़ा सिक्योरली हमने अपने आप को अपनी पोजीशन पे डिस्पोज करना था, अपनी हाइट्स ऑक्यूपाई करनी थी ताकि उनको हम ट्रैप कर सकें, विद इन किलिंग जोन लेके आ सकें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि इसको बहुत बड़ा सिक्रेसी से हमने सर अंजाम दिया। तो ये कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे ऑफिसर्स बता रहे हैं कि देयर आर मेनी स्टेप्स, किसी एक स्टेप में भी अगर चीज़ें लेफ़्ट राइट हो जाएं या अगर चीज़ें मैनेज ना हो सकें तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना और कहीं भी एक भी गलती ना करना, ये शायद ही सालों में और सदियों में एक दफ़ा होता है। और ऐसा हुआ है, यहाँ हुआ है 26 और 27 अप्रैल की रात को, तभी इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और तभी ये बैज भी तमाम जवानों को और ऑफिसर्स को लगा है। जो यंग ऑफिसर, सोचा था आशिम भाई कि ये एक ऑनर आपको मिलेगा? एग्जैक्टली बिल्कुल, ये इसी चीज़ की तो हम तैयारी कर रहे थे और अल्लाह ने हमें मौका दिया। और जिस तरीके से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया, ये अपने आप में एक मिसाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कोई कैजुअल्टी नहीं होने दी। और आप देख सकते हैं कि कितने इसमें दरख्त है और कितनी थिक वेजिटेशन है। इसमें आपको डिटेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है और उसके बावजूद आप देखेंगे रात को ये 8-9 बजे के दरमियान में ये सर अंजाम हुआ है ये सारा ऑपरेशन। उसमें कंप्लीट डार्कनेस थी और उसको भी आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से हमने इसको सरप्राइज़ उनको दिया। कंपनी कमांडर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कमांडर की भी सुननी है, जवानों को भी इंगेज करना है, दुश्मन पर भी नज़र रखनी है। तो आँखें दो, कान दो, हाथ दो, तो काम 7-7 8-8 इकट्ठे ही करी गए हो कि में। एग्जैक्टली ये आपने जो है ना, मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल जड़ से आपने सवाल पूछा है। और मेरा ख्याल है बिल्कुल सबसे ये नर्व्स की गेम थी ये, जिसको देखा जाए। और वही बात जिस तरह इन्होंने की है मेजर फिरोज़ ने, कि इसको हमारी प्रैक्टिस अच्छी थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग जवानों के साथ अच्छी थी। उनको जिस तरीके से मैंने उन्हें ब्रीफ़ किया उन्होंने उससे बढ़कर दिया, और जिस तरह की मुझे ब्रीफिंग दी गई थी और मैंने उसी तरह परफॉर्म किया। और जैसा कि ये इनको कंट्रोल करना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि जिस तरह किया जाता है कि आप इनको एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड था कि किस टाइम पे कौन फायर खोलेगा, उनको किधर लाया जाएगा, उनको किलिंग जोन में फंसाया जाएगा, फिर कौन फायर खोलेगा, ये सब मेरे कंट्रोल के ऊपर चल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सर ये बताइए कितना मुश्किल है एक मोर्चे के अंदर दुश्मन पे नज़र रखना कि कोई मूवमेंट ना हो, कोई बाढ़ क्रॉस ना करे, तो कितना मुश्किल काम है? सर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सामने से जो वो लोग होते हैं उनके पास नाइट कैपेबल वेपन भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको तो हमारी ऑलरेडी जगह जो होती है वो मालूम होती है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म में और बॉर्डर पे खड़े हैं और मोर्चा नज़र भी आ रहा है ना दूर से। और मोर्चा नज़र आ रहा है और हम बिल्कुल सामने जो हैं वो सीसा पड़ाई दीवार की तरह इनके सामने खड़े हैं। जबकि हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये इनको इन पहाड़ियों में, इन दरख्तों में इनको ढूंढना। आपका एक्सपीरियंस क्या है? किस तरह के लोग आते हैं जो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं? उनकी टेक्निक क्या होती है, क्या मेथड वो इस्तेमाल करते हैं? सर वो मेथड इस्तेमाल करते हैं कि पहले कुछ लोग जो हैं वो दरख्तों की आड़ में, उसके बाद कैमोफ्लेज किस्म के जो ड्रेसेस हैं वो उन्होंने पहने होते हैं और वो उनको यूज़ करते हैं। कुछ लोग टेकरियों के ऊपर बैठकर पक्का हमारे ऊपर सर्वेलेंस रख रहे होते हैं, कैमरोज़ को देख रहे होते हैं। लेकिन हम भी उनके बरक्स जो है हमारे पास भी सारा सर्वेलेंस सिस्टम है और हम एक साइड से नहीं मुख्तलिफ साइड से उनको देख रहे होते हैं। जबकि जो फिज़िकली होते हैं वो हम इन मोर्चों में मौजूद होते हैं और हम भी इनको हर तरह से काउंटर करने के लिए 24 घंटे तैयार होते हैं। मोर्चों पर रहते हुए कुछ याद है कि कितने लोग ने कोशिश की पाकिस्तान में घुसने की? सर यहाँ पे रहते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की और मुख्तलिफ़ अदवार में अटैम्प्ट्स होती रहती हैं, जिनको हम जो हैं वो नाकाम बनाते रहते हैं। इनमें से कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी 10 और मुख्तलिफ़ टोलियों में ये नज़र आते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो फेंस के करीब नहीं आ पाते, हम उनको दूर से ही जो हैं वो काउंटर कर लेते हैं और वो दूर से ही भाग जाते हैं वापस। वेरी गुड। सर उस्मान साहब आप भी बताइएगा मुझे कि इस गन पे हर टाइम खड़े होना होता है या सो भी जाते हैं? नो सर, हर टाइम खड़े रहना होता है। जो ड्यूटी होती है हमारी वो हमने प्रॉपर्ली करनी होती है। जो आँख है ये पाकिस्तान की आँख है जो देख रही है, और ये आँख कभी सर आ जाएंगे, ये थोड़ी देर रेस्ट को चले जाएंगे, कभी ये आएंगे तो सर रेस्ट पे बैठ जाएंगे, तो दोनों ने मिलके एक लम्हे को भी आँख जो है वो यहाँ से हटाई नहीं जाती। नो सर, हमने प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन करनी होती है अगले एरिया की, ताकि कोई भी जो है ये जो टेररिस्ट हैं ये जो हमारी तरफ कोई भी आता है हम उनको एंगेज करते हैं। हम उनकी जो है ना हम अपनी ऑब्जर्वेशन प्रॉपर रखते हैं, ताकि कोई मिसहैप ना हो।
नाजरीन मैं यहाँ मौजूद हूँ और शवाल का ये एरिया है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न आपको नहीं बता पा रहा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल एरिया है, बहुत नामुमकिन सा एरिया है। दुनिया का ये ख़तरनाक तरीन और मुश्किल तरीन बॉर्डर माना जाता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, और पाकिस्तान के लिए हमेशा ही ये ख़तरे की अलामत है। हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज बड़े अरसे से काम कर रही हैं, कालादम फितनतुल ख़वारिज तालिबान TTP के लोग हों और बाकी तंजीमें हों, रॉ के पूरे तरीके से रॉ यहाँ से ऑपरेट करती है, तो फ़ौजी जवानों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पर इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी इनके हौसले कम नहीं हुए और कभी ये आराम को नहीं लौटे। आज क्योंकि ईद है और ईद के तीसरा दिन है, तो ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सूबेदार मेजर साहब भी हमारे साथ हैं, बाकी जवान भी हैं। तो सर ईद, एक तो सबसे पहले ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। और कैसा लग रहा है कि ईद जो है वो इतने मुश्किल एरिया, मतलब यहाँ तो ज़िंदगी गुजारना एक बड़ा नामुमकिन सा काम है, तो ईद का एक बड़ा दिन वर्दी में ड्यूटी पे अगले मोर्चों में मौजूद हैं आप। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं आए, ये यहाँ पे मौजूद थे पहले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले अहले वतन को ईद मुबारक। और रही बात ईद के दिन की, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, मुल्क के दफ़ा के लिए हम बैठे हुए हैं और इतनी सर्विस हो गई है। अभी जो ईद है हमें इन जवानों के साथ बड़ा मज़ा आता है, और ख़ासकर अभी जो हम ड्यूटी कर रहे हैं अपने डिफेंस में मुल्क की हिफाजत के लिए, तो और मज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा है। दिल तो करता है ना कि ईद यार फिर भी सुकून में गुजारी जाए, या वतन के लिए नहीं, पहले वतन है, उसके बाद ईद है और उसके बाद घर वाले हैं। क्यों इतना अरसा हो गया फ़ौज को अपनी ज़िंदगी दे दी है, अभी मुल्क के लिए इंशाल्लाह हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। सूबेदार मेजर तजम्मुल साहब ये बताएं, कितनी ईदें आपने बॉर्डर पे की हैं अंदाज़ा? मेरे ख्याल में मेरी सर्विस में कोई 55 से 60 ईदें हैं और मैंने तकरीबन जो है ना ज़्यादा ईदें बॉर्डर पे फील्ड एरिया में की, ड्यूटी करते हुए की। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। इन जवानों के साथ, यही मेरे छोटे भाई हैं, यही मेरे बच्चे हैं, मज़ा आता है इनके साथ रहने का। सख्ती करते हैं इन पे, मैंने सुना है? नहीं, ऐसी कोई सख्ती नहीं है, बस मुस्कुरा रहा है अहमद जो है ना, हामिद सर इनका बिल्कुल ख्याल रखते हैं सर, ये बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह बहुत ख्याल रखते हैं सर इनका। बिला वजह नहीं कहते हो उस मोर्चे से जा फलानी जा पढ़ के ले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं और जो ख़वारजी हैं वो आने की कोशिश करते हैं, उनको आने नहीं देते। बड़ा ख़तरनाक बॉर्डर है, दुनिया का ख़तरनाक तरीन बॉर्डर माना जाता है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है? जो हम ऑफ कोर्स ये वही एरिया है, आप भी उस रात थे, मैंने आपका बैच पढ़ लिया है, 26 और 27 अप्रैल की रात जब 71 ख़वारजीन को मारा हमने और दुश्मन को बताया कि मैली आँख नहीं उठाई जा सकती पाकिस्तान के ऊपर, तो ये बड़ा मुश्किल है। एक तो ज़रा उस रात का भी मुझे एक्सपीरियंस बताइएगा, और दूसरा यूजुअली किस तरह की यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने हमें इतनी हिम्मत दी। हम कोशिश करते हैं इस बॉर्डर पे रह के ख़वारजीन को ना आने दें। अगर कोई ख़वारजीन यहाँ से आता है और हम इंशाल्लाह अब हमें आँख दिखाता है तो हम उसकी आँख निकाल लेते हैं। जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं, कुछ दिन पहले जो ख़वारजीन आए थे हमने उनको अंदर आने दिया बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जवानों ने उनको जाने नहीं वापस दिया। 71 के लगभग थे इंशाल्लाह बंदे, उनको जाने नहीं दिया। और ये हमारा मैसेज है उन ख़वारजीन के लिए भी, इंशाल्लाह वो जाएंगे नहीं सर। और ये मैसेज दुश्मन के लिए हमेशा रहेगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ये मैसेज जो है ना दुश्मन के लिए हमेशा रहेगा। हाँ, आजमाना नहीं है, हम हर वक्त तैयार रहते हैं। तो ज़रा बाकी जवानों से, अली भी हमारे साथ हैं, लुकमान एंड हामिद भाई भी यहाँ पे हैं। तो अली भाई, एक तो ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। तो ईद गुजर रही है यहाँ पे जी, कैसी लग रही है यहाँ पे ईद? बहुत अच्छा लग रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने ज़्यादा लोगों में से मुझे चुना अपने वतन की हिफाजत के लिए। तो ईद यही होती है कि हम पीछे जो लोग बैठे हैं उनको सिक्योर करें, और बहुत अच्छा लग रहा है इधर ईद गुजार के। लुकमान भाई कहाँ से हैं आप? मैं ज़िला रावलपिंडी से। रावलपिंडी से हैं, तो आपका भी ईद यहीं गुजर गई है? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो दिल कर रहा था कि घर जाऊँ ईद गुजारूँ? दिल तो कर रहा था, लेकिन सबसे पहले हमारा वतन है और उसकी हिफाजत करना हम पर, जो हमने ये ड्यूटी ली है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है। दुनिया की सारी अफवाज मानती हैं कि ये ख़तरनाक महाज है, ख़तरनाक बॉर्डर है, तो ख़तरनाक बॉर्डर पे ईद के दिन और हर वक्त दुश्मन का खौफ और डर हमारे ऊपर रहता है। बिल्कुल ये ख़तरनाक तो है, लेकिन जो हमने ट्रेनिंग की होती है वो हमने हर तरीके से की होती है, हर एरिया के लिहाज से की होती है। कोई खौफ नहीं है दुश्मन का। तो उस लिहाज से हमें इस एरिया के बारे में, या कोई भी किसी किस्म का भी एरिया हो, हमें कोई खौफ नहीं होता। तो हम इंशाल्लाह
दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के लड़ते हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। ईद पे क्या मैसेज है घर वालों के लिए? घर वालों के लिए सबसे पहले तो यह है कि सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक, पाक फ़ौज की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और बस ये है कि हम इधर अपने मुल्क के दफा के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, तो आप हंसी खुशी जो है वो ईद की खुशियाँ मनाएं। और इसी तरह इस मुल्क की हिफाजत होती रहेगी। तो हामिद भाई, आप हंस रहे थे जब मैंने कहा सूबेदार साहब आप बहुत सख्ती करते हैं, तो सूबेदार साहब ऊंची आवाज़ में कहते हैं हामिद किधर जा रहे हो? हैं? नहीं सर, ऐसा कोई माहौल नहीं है। जो सर यूनिट होती है ना, वैसे ये माहौल इस फ़ौज की खूबसूरती है, ये माहौल, ये खूबसूरती है इस हमारी फ़ौज की। नहीं सर, जो एक ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग होती है, जो काम होता है वो काम होता है। वैसे सर जो यूनिट होती है ना, वो एक जवान का घर होता है, तो उसमें सर घर जैसा माहौल होता है, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई मसला मसाइल हो, कोई ये ईद आपको ऐसे लगा जैसे आपने घर में गुजारी है? बिल्कुल सर ऐसा ही है। अगर बंदा सोचे तो यूनिट उसका घर होता है और ईद अपने घर वालों के साथ ही कर रहा है। सर क्या पैगाम देंगे अपने घर वालों के लिए ईद के दिन? सर घर वालों के लिए और वतन के लिए सबसे पहले पाक फ़ौज की तरफ से ईद मुबारक। और सबको यही कहूँगा कि हंसी खुशी ईद करें, हम जाग रहे हैं और हम जागते रहेंगे और आपकी हिफाजत करते रहेंगे। ये बहुत ख़तरनाक महाज है, ख़तरनाक बॉर्डर है, इलाका मुश्किल है, एरिया ट्रेन्स मुश्किल हैं, पहाड़ जंगल, और दुश्मन किसी भी लम्हे आ सकता है। तो कैसी तैयारी होती है और हमारी, और कैसे जज्बात होते हैं हमारे? जी बिल्कुल भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पाक फ़ौज से बेहतर कोई नहीं। हम हर वक्त तैयार हैं दुश्मन का मुकाबला करने। इंशाल्लाह जैसे भी दुश्मन आएगा मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर दुनिया का ख़तरनाक तरीन, दुनिया का मुश्किल तरीन और दुनिया का नामुमकिन माना जाने वाला बॉर्डर, जहां मेरा फ़ौजी जवान भरपूर आज़म के साथ ये दिल में ख्वाहिश लिए कि पाकिस्तान में कोई भी दुश्मन मैली आँख से ना देख सके, आप और मैं सुकून की ज़िंदगी जी सकें, आप और मैं ईद बेहतरीन तरीके से गुजार सकें, और हम सब अपने घरों में ईद गुजार रहे हैं। पर ये जवान ईद के दिन भी इन मोर्चों पे, इस बॉर्डर पे, इस फेंस पे, इस धरती की, इस पाक वतन की हिफाजत कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे हम सब कहते हैं कि हमारी जानें निशावर हैं। चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि लाखों आसिम इस मुल्क पर कुर्बान, तो हम सब इस मुल्क पर कुर्बान हैं। इस मुल्क की सलामती और अजमत पर हम हमेशा कुर्बान हो सकते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ईद पर क्या मैसेज है आपका? ईद पर मेरी तरफ से और मेरे तमाम जवानों की तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक हम बॉर्डर पे जाग रहे हैं, आप आराम से ईद भी कर सकते हैं और सुकून से सो भी सकते हैं। आप सबको ईद मुबारक। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।